Hello kids, let us continue the part 5 in part 6, that is problems on Coulomb force and other forces. Let it be continued. Next class also we will take the problem classes. Let us see the few problems. Why I am giving stress in numerical problems, because you are getting confused, that is you are getting bored in solving the problems. Again and again I am repeating, learn the formula, get the concept crystal clear, and then remember, while putting the values, all the values must be in the same system units. You will be getting no problem in solving the problems. Now let us discuss the next problem. The problem is like this. Two particles, each of mass small m and charge capital Q, stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation small r between them. If the coefficient of friction between the coefficient of friction is represented by mu between each particle and table be the same, find mu. This is the problem to be solved. Again I am repeating, two particles each of mass m and charge q stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation r between them. If the coefficient of friction mu between each particle and table will be the same, find mu. How to solve this problem? Let us see the solution. See, this is the horizontal surface of the table. Say this is one particle, this is the another particle having mass m each and charge q. Separation between them is r. Let us see how many forces are acting on each particle. This particle, this is the weight acting on the particle. The table offers a normal reaction. Since both charges are similar, they will exert force on each other, and the force here is repulsive, that is the Coulomb force. Since this object will have a tendency to move in this direction to Coulomb force, so the limiting frictional force is acting to the right. The same four forces will be acting on that particle also, that is the gravity, normal force, Coulomb force, and the limiting friction. Now consider one of the particle stay in limiting equilibrium, meaning thereby in limiting equilibrium this n will balance mg, and this Coulomb force is balanced by this frictional force. So in equilibrium, what you can say that n is equal to mg, equation 1. Also
you can say the limiting friction is balanced by Coulomb force. If you recall standard 11, the limiting friction you calculate as mu times normal reaction Coulomb force. Normal reaction is how much? mg. That is mu mg Coulomb force, that you know, 1 by 4 pi epsilon naught, product of the magnitude of charges by Severson square. What is required? Mu is required. So take mg to the right hand side, and so mu is equal to q square by 4 pi epsilon naught mg r square. Is that clear? Now let us proceed to the next problem. So again I am repeating, and balances mg, this balances this, in limit equilibrium n is equal to mg, fl is equal to fc, fl को रिप्लेस किया mu n से, fc के बदले fc का वैल्यू लिख दिया, mu को निकालना है, mg को 10 शिफ्ट कर दिया. अगर मान लो कोई वैल्यूज दिया हुआ है तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमेशा याद रखना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय all must have in the same system of units. मैं हर एक क्लास में हर एक प्रॉब्लम इसको रिपीट करता हूँ. Our next problem is two identical charges capital Q each are kept at a distance small r from each other, a third charge small q is placed on the line joining the two charges such that all the three charges are in equilibrium. You know the meaning of equilibrium. That is force exerted by net force exerted by each of the charge must be 0. What is the magnitude and sign of the charges, and also locate the position. This is our present problem. Again I am repeating, two identical charges capital Q each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude and sign of the charge small q, and also locate the position of it. Let us solve the problem. Let us see the solution.
छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं। Say this is capital Q, say this is capital Q, located at A and B. The separation between them is R given. In between them, say at the location C, the charge Q is placed. Let it be at a distance x. If it is x, if it is r, then this distance will be r minus x. Let it be your x axis. मान लेते हैं ये x axis है। हमको लोकेशन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है और इसका साइन भी बताना है। ना सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं। अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके कारण और इसके कारण, वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। तो मान लेते हैं शुरू में ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। लेट ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव। अगर ऐसा मान लेते हैं और अपनी नजर इस चार्ज पर रखते हैं तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। इसका नाम दिया F वेक्टर CA, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट A। ये इसको इधर रिपेल करेगा। इसका क्या नाम दूं? F वेक्टर CB, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B। अब इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होना चाहिए 0 फॉर Q to be in equilibrium। आप कहोगे F वेक्टर CA प्लस F वेक्टर CB इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो मैंने मेंशन कर ही दिया, लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें। अब देखते हैं आंसर जो आएगा देखा जाएगा। You know how to write the Coulomb law in terms of vector form। F वेक्टर CA पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है, इसके बीच और इसके बीच का फोर्स है, तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बाय सेपरेशन x स्क्वायर, ये डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है, इनटू i कैप प्लस F वेक्टर CB, इसके बीच का फोर्स है 1/4πε0 अगेन Q इंटू Q, ये सेपरेशन है r माइनस x होल स्क्वायर, डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस दैट इज माइनस i कैप, डायरेक्शन इसका अपोजिट है माइनस। अब क्या कर रहे हैं? इस टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, चाहे इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे। ये टर्म जब उधर जाएगा तो ये माइनस i कैप क्या हो जाएगा? प्लस i कैप हो जाएगा, प्लस i कैप हो जाएगा। तो क्या होगा? 1/4πε0 Q by x स्क्वायर i कैप इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q by r माइनस x होल स्क्वायर, ये भी i कैप हो जाएगा। बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4πε0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, i कैप कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रह जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? r माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। जब इस तरह के स्क्वायर टर्म देखो तो तुरंत नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले मारो, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो r माइनस x राइट हैंड साइड में लिखा प्लस माइनस x, इसका स्क्वायर रूट प्लस x भी हो सकता है, माइनस x भी हो सकता है। आइदर r माइनस x इक्वल टू x, इस x को उधर ले जाओगे तो क्या कहोगे? r इक्वल टू 2x एंड सो x इज इक्वल टू r/2। पोजीशन क्या हुआ? इन बिटवीन, r/2 कहे तो इन बिटवीन। तो सर आप इसको भी इक्वेट करके देख लो, r माइनस x इक्वल टू माइनस x, माइनस कट जाएगा, r इक्वल टू 0। नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है।
तो एक पार्ट का जवाब आपने दे दिया, पोजीशन क्या होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए। अब अगला हमको क्या बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है और इसका साइन बताना है। फिर से एक फेज डायग्राम बनाते हैं। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू। अभी आपको पता है ये r/2 है, ये r है, इसको x एक्सिस मान लिया था। अपनी नजर इस चार्ट पर रखेंगे, इस चार्ट पर रखेंगे, इस चार्ट पर। फॉर कैपिटल क्यू एट A टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस पर नजर रखेंगे। तो इस पर भी दो फोर्स लग रहे होंगे। चूंकि आपने माना हुआ था ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल ही करेगा। जब नाम दोगे इसके कारण इसके कारण, क्या नाम दोगे, F वेक्टर AC और इसको कहेंगे F वेक्टर AB, ऐसा कुछ कहेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। देखने से तो नहीं लगता है, कैसे लगेगा, तीनों को तो आपने पॉजिटिव माना हुआ है, नहीं लगेगा। आफ्टर सॉल्यूशन यू विल फाइंड दिस Q विल बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इसके कारण ये चार्ज इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण क्या लगेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वो सॉल्यूशन बाद अपने आप आ जाएगा। F वेक्टर AB प्लस F वेक्टर AC इज इक्वल टू 0। F वेक्टर AB इसके बीच और इसके बीच का फोर्स है, that is 1/4 pi epsilon naught into Q square by R square minus I cap। F वेक्टर AC इसके बीच का फोर्स है 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q by इसका स्क्वायर वैल्यू R/2 का स्क्वायर वैल्यू, ये डायरेक्शन में किधर है, माइनस I cap इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके देखा जाए क्या आता है, सिंप्लीफाई किया जाए। तो आप क्या करो, इस टर्म को उठा को उधर ले जाओ, तो इस टर्म को उठा को उधर ले जाओ, तो एक टर्म को उठा को उधर ले जाओ। मान लो मैं इस टर्म को उठा को उधर ले जा रहा हूं, तो माइनस आई कैप उधर जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा, और इस टर्म को इधर ले रहूंगा, ये 2 जब 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 4q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस आई कैप तो रहेगा, माइनस आई कैप तो रहेगा, इक्वल टू ये टर्म उधर चला गया, ये माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई कैप। अब देखो बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक q से एक q कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, i कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या रह गया, 4 स्मॉल q is equal to with a negative sign, with a negative sign is equal to capital Q, that is small q is equal to minus q by 4। अब आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q will be q by 4। व्हाट इज द साइन ऑफ q, साइन ऑफ q इज नेगेटिव। ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q by 4, साइन ऑफ स्मॉल q नेगेटिव। अब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस
3-point charges small q each are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force? What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle. अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन होता, विदाउट सॉल्विंग में कर लेता नेट फोर्स इज 0, लेकिन मान लो अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, वहाँ स्टेप बाय मार्क्स लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो स्टेप बाय लिख लेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक रफ डायग्राम बनाया जाए। मान लो ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेंगे वो तुम्हारा सेंट्रॉइड हो गया। से इट इज G, से द वर्टिसेस आर A, B and C। 3-point charges small q each are placed at the vertices। यहाँ स्मॉल q है, यहाँ स्मॉल q है और यहाँ भी स्मॉल q है। ऑफ साइड L, ये साइड क्या है, L है। What is the force on the charge Q? चार्ज कैपिटल Q को कहां रखा है, प्लेस एट द सेंट्रॉइड यहां रखा है। इस पर नेट फोर्स पूछा गया है, निकाला जाए। अगर मैं इसका नाम D लिख दिया, या E लिख दिया, या F लिख दिया, क्या आप इस अल्टीट्यूड को निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट वैल्यू लोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 80 निकल जाएगा। जब ये वैल्यू जान लोगे तो इस वर्टेक्स से ये डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ द अल्टीट्यूड, इस अल्टीट्यूड का 2/3 डिस्टेंस होगा। तो AG कहो चाहे BG कहो चाहे CG कहो, ये सारा वैल्यू सेम होगा। कितना होगा, 2/3 ऑफ अल्टीट्यूड, दिस अल्टीट्यूड L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। L स्क्वायर बाय 4 हो गया, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, 3L स्क्वायर बाय 4, रूट लिया, रूट 3L/2। ये 2 से ये 2 कट गया, रूट 3 से ये 3 कट गया, दैट्स L/√3। चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं लिखा है। L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, 3L स्क्वायर बाय 4, फिर रूट 3L/2, 2 कैंसिल आउट, रूट 3 से 3 कैंसिल आउट, L/√3। नाउ अब क्या होगा, ये इसको इधर रिपेल करना चाहता होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करना चाहता होगा, ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करना चाहता है। मान लो अभी मैं नहीं कुछ ऐसा करता हूं, से इट इज F1 वेक्टर, से नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, अदरवाइज आप नाम दे सकते थे दिस इज F वेक्टर GA, F वेक्टर GB, F वेक्टर G से ऐसा नाम दे सकते हो। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 वेक्टर, ये तीनों सेम होंगे कि ये जो पेयर ऑफ चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस आपने निकाला L/√3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3Q बाय L स्क्वायर।
कभी आपको मैंने लामिस थ्योरम बताया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हों और तीनों फोर्स क्या है, सेम है, तो ये 120, ये 120, ये 120 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और ये जस्ट इसके ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Therefore, or you can say angle between each forces is 120 डिग्री। Therefore, आप डायरेक्ट रिकॉल करके लिख सकते हो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स भी 0, क्योंकि तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन ईच फोर्सेस 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0। अदरवाइज अगर 2-4 स्टेप आप लिखना चाहते हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, उस रिजल्टेंट का वैल्यू इन दोनों के बराबर होगा, और ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ऑपोजिट एक्स पर नेट फोर्स 0, ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर? थैंक यू चिल्ड्रन। कितना मिनट